Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of our online video series. Gentlemen, essay writing के बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले इस पे। तो पहले मैं दो टॉपिक करा चुका हूँ ऐसे कि जिसने इनको नहीं पढ़ा सो काइंडली आप प्ले लिस्ट में से चेक कर लीजिएगा इनको। आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओवरव्यू द प्रीवियस लेक्चर रिगार्डिंग द एसे राइटिंग। एज पर मैंने पहले बताया था कि व्हाट इज द एसे राइटिंग, एक्चुअली एसे राइटिंग है क्या, डेफिनेशन ऑफ एसे मैंने करके दिया था आप लोग को, ठीक है। ये था पहला लेक्चर। पहला लेक्चर का जो दूसरा पार्ट था, दूसरा लेक्चर जो था, मोस्ट आस्क्ड पॉसिबल क्वेश्चंस थे, वो मैंने कराए हैं यहाँ तक। अभी आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है एक्चुअली, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ओनली। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में, इसमें बेटा द फर्स्ट थिंग इज दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेक्चर will be as what is an essay. The first thing, we will define the essay in the proper meaning, and then the term essay, meaning of the essay, and then we will discuss the types of essay. One of the most important thing कि जब आप ऐसे के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन ऐसे। अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके मीनिंग क्या है। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप ऑफ ऐसे, टाइप्स ऑफ ऐसे, ऐसे के टाइप्स क्या हैं, ऐसे किस टाइप का होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऐसे, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स गो एट कि बेटा सबसे पहले, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ ऐसे। लेट्स डिफाइन द ऐसे कि ऐसे है क्या, ऐसे है क्या जी। So in this regard, as we know that an essay is a piece of academic writing. An essay is actually a piece of academic writing. What is an academic writing? As we know that academic writing is include all the subjects specialized, especially we can say that the subject may be academic level, may be the science subjects, the academic level may be the arts subjects, the academic level may be Islamic studies, the academic level may be Pak study. The academic level may be international relations, the academic level may be politics, political science, the academic level may be sociology, the academic level may be public ed. So whatever, up academic level, you can consider academic level all these subjects on the university levels and the college level. We can consider academic subjects all those. Asa ji. The next that writing that is generally consists of 15 to 500,000 words. In this definition, we came to know that the first thing is that the essay is actually an academic writing. Academic writing, that is the confirm, a piece of academic writing. But the academic writing must be consist of 1,500 or 5,000 words. Now, the piece of writing, the length of the piece of writing may be in between the 15,000, 1,500 and 5,000, या तो 1,500 या 5,000 वर्ड्स, इनके दरमियानी हो। ऐसे राइटिंग इज एक्चुअली ये चीज है, ठीक है जी। अच्छा जी, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल exploration of a topic too, and different arguments, evidence to develop the writer's perspectives, opinions and stance. Now listen, actually the piece of writing must be intellectual exploration. What is intellectual exploration? The topic which assign you people, you have to explore with given arguments and evidence, and what is your final thought about that writing, that topic, that is actually an essay. Now listen, we come to know that intellectual exploration
then we have to prove this one by the arguments and evidence. Now, after the arguments and evidence, we must take a stance. We must take a stance. Our opinions. What are our opinion about that piece of writing? So, in conclusion, we can say that the essays, actually, an essay is a piece of academic writing. Now it's clear that may be between 1500 to 5000 words, and the topic must be intellectual exploration, and you have to give argument, you have to give evidence, and you have to take a stance about that topic. Actually that is an essay. That is an essay. essay क्या है? essay एक academic piece of writing है जिसमें आपको लिखने हैं 1500 से 5000 अल्फाज, और इसको आपने प्रूव करना है किससे जी? आर्गुमेंट से। आपने इसे तबसरा करना है, इसके अलावा आपने इसके सबूत देने हैं, वजाहत करना है, और आपने आखिर में अपनी स्टांस लेना है उसके बारे में कि आपकी ओपिनियन, आपका नजरिया क्या है इस टॉपिक के बारे में। दैट इज एन एसे। ओके जी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट मीनिंग ऑफ एन एसे। मीनिंग ऑफ एन एसे क्या है जी? मीनिंग ऑफ एन एसे। ओके जी। देखिए जी, द वर्ड एसे ओरिजिनली मीन्स एन अटेम्प्ट। ऐसे के जो मीनिंग है वो है एन अटेम्प्ट, यानी कि क्या करना जी? सॉल्व करना, कोशिश करना। आर ट्राई, या क्या करना जी? कोशिश करना इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसे एक्चुअली। एट सम टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में। अच्छा, बट टेक्निकली इट इज यूजुअली मीन्स comprehensive piece of writing on a specific topic. Now, the technical meaning of an essay. What is the technical treatment? As I told you the first lecture, that you have to technically treat the essay. Technically treat the essay. So word essay means that, the word essay means that technically it may be a comprehensive piece of writing on a specific topic. What I mean to say that when the essay paper will be given to you people, there may be 10 topics. Out of 10 topics, you have to select one. You have to select one on the CSS and the FPSC level, but in the PCS level, there will be 3 topics. You have to select one of them. So that is the selected topic. You have to write comprehensive piece of writing over that topic. On that topic, you have to write a comprehensive piece of writing. आपने comprehensive piece of writing इस पे लिखना है। ओके जी। Now the types of an essay. Types of essay क्या हैं जी? Now look, actually the essay has got 5 types. essay के 5 types हैं जी। Number 1, reflective. Number 2, narrative. Number 3, expository. Number 4, descriptive. And number 5, imaginative. These are the types of essay. These are the types of essay. ही essay के types हैं। अच्छा बेटा, अभी हम आते हैं, the next thing is that which topic can be category and the reflective topic, and how to solve the reflective topic. reflective topic को आपने कैसे लिखना है, how, किस तरह आपने इनको डील करना है। सबसे पहले the reflective essay mean that reflections of the thoughts on some subjects. आपने अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना है उनके ऊपर। ये क्या हो सकते हैं बेटा? हैबिट्स हो सकते हैं, क्वालिटीज हो सकती हैं, ट्रूथफुलनेस है, ठीक है, इसके अलावा पॉवर्टी है, डेमोक्रेसी है, इसके अलावा एजुकेशन है, मैरिज है, बिजनेस है, सोशल एंड पॉलिटिकल, फिलोसफिकल सब्जेक्ट्स एंड रिलीजियस सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स आपको जहां पे भी नजर आ जाएं, एक्चुअली ये रिफ्लेक्टिव टॉपिक है। आप अपने जहन में ये लाएं कि these topics are actually the reflective topics. ये reflective topic है, हमने इन पे reflective अंदाज से क्या लिखना है जी? ऐसे लिखना है। ओके जी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास narrative essay. Narrative some events are the series of the events, historical stories of the legends, biographies, incident and the natural disaster.
नैरेटिव ऐसे हमने नैरेटिव देना है, नरेट करना है, इनकी बारे में लिखना है ऑलरेडी जो बयान है। सो इसमें हिस्टोरिकल स्टोरीज होते हैं जी, हमारे लेजर्स जो होते हैं, हमारे हीरोज जो होते हैं, हमारे वॉरियर्स जो होते हैं, उनके बारे में हम लिखते हैं जी। इसके अलावा बायोग्राफी के जितने भी ऐसे आते हैं, सपोज ऑन कायदे आजम, हॉली प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम, इसके अलावा अल्लामा इकबाल, इसके अलावा जितने भी ऐसे आते हैं इनको हम कहते हैं नैरेटिव ऐसे, ठीक है, जिनको हम क्या कहेंगे जी, नैरेटिव ऐसे। एक्सीडेंट या जो ना कोई भी हादसा हो चुका हो या नेचुरल डिजास्टर, ये हम किस पे करते हैं जी, आपके नैरेटिव ऐसे में हम इनको डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा डिस्क्रिप्टिव ऐसे, हाउ टू डिस्क्रिप्ट। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे मीन दैट डिस्क्रिप्शन से निकला है ऑफ अ प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, एनिमल्स है या सिटीज हैं या फिनोमिना है। किसी भी चीज को अगर हम डिस्क्राइब करें, उसकी डिस्क्रिप्शन कर लें, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे में शुमार करते हैं। दैट्स द डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे है, एक्सप्लेनेशन। इसमें हम एक्सप्लेनेशन देंगे एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देना है, इसको एक्सप्लेन करना है। वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन हो सकता है, साइंटिफिक टॉपिक्स एंड लिटरेरी टॉपिक भी हो सकते हैं। these are the expository essay। expository mean that expose करना, इसको explanation देना किसी सब्जेक्ट के बारे में। सो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, साइंटिफिक सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है जी, लिटरेरी टॉपिक भी इसी में आ जाते हैं। इमेजिनेटिव टॉपिक्स क्या हो जाते हैं जी, इमेजिनेटिव टॉपिक्स आर सच टॉपिक्स एज अ फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। जैसे आपकी ट्रैवलिंग है, जैसे आपकी हंटिंग है, जैसे आपकी किसी जगह पे विजिट है। सो इन दी imaginative essay you have to explain that what is your experience and your feeling about that। आपकी फीलिंग और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में क्या है। सो दैट्स दी ऐसे बेटा। ये हमारा सेकंड लेक्चर था। अभी हमने जो है ना नेक्स्ट हमारा सेकंड लेक्चर, सॉरी फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्क्स ऑफ ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग स्किल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे राइटिंग। दैट इंशाल्लाह वही हम डिस्कस करेंगे इस चीज को, और इंशाल्लाह हमारे खूब अंदाज रहेगा। सो पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लें तो बेहतर समझ आ जाएगा। थैंक यू।